this naive-based classifier, and we looked at basic concepts of the probability theory, the joint probability, marginal probability, conditional probability. Then we looked at some of the rules, sum rule, product rule, and Bayesian theorem, Bayes theorem. And the naive Bayes is actually based on the naive Bayes theorem, and we said that this part is called the posterior probability that we are interested in. And the important thing to note is that if you try to make a Bayes net, the graphical representation, then this is how you're going to make it. That you will have a variable y which is hidden, and then you have a variable x which is observable. And in this case, the probability of y given x, because you want to find the probability of y, which is hidden variable, conditioned on the evidence or the observable variable. This is what we want to find, and therefore we call it the posterior. This probability is called the likelihood, and this is the prior. Okay. In order to compute the posterior, we need to know the likelihood and we need to know the prior. और denominator हमने कल देखा था कि we can compute using normalization. कि आप हमने कहा कि अगर not or occurrence of an event or not occurrence को हम sum करेंगे, it should be 1, and using that we computed the denominator. Okay, and so far so good. And then we talked about naive Bayes, and the problem that we faced was while deriving, the posterior probability, we end up having this probability for which we do not have the value to use. So what we did, we made some assumptions, okay, and that assumption is called conditional independence assumption, which says that T1 and T2, the two variables, these two, T1, T2, they are independent, conditioned on C. Okay, they are not absolutely independent. There is no absolute independence, but they are conditionally independent. That is, C is given, then T1 and T2 are independent. So what this does is that we can write now this probability like this. So we do not need T1. Okay. Now the thing is very easy. Okay, the naive Bayes algorithm basically of this form. Okay, the graphical representation of the structure is this: that you have one hidden variable and many evidences. You want to compute the probability of y. Okay, what is the probability of y conditioned on all these evidences? Next level pe sub children. And in order to compute the equation, simply we have to write it in terms of the likelihood and prior. ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं prior, which is this is the prior probability, and then we write all the likelihood and up till L जितने भी आपके children हैं, and divided by the denominator which is W1 WL. ठीक है, remember यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है, this is simply the numerator. क्योंकि इस part को हम we can also call the joint probability of y and all the children. ठीक है, y और जितने भी आपके evidences हैं, सारे जितने variables हैं, this numerator is the joint probability of the joint probability. तो इसलिए यहाँ सिर्फ आपका जो joint लिखी हुई है, but in actual if you want to compute the posterior, then you have this denominator as well, जो कि यहाँ mentioned है. Okay, the last, and then we said कि ठीक है, यहाँ तक तो बात clear होगी कि how to compute the posterior, but how do you compute the prior and the likelihood? क्योंकि ये values होंगी तो आप posterior compute करेंगे. ठीक है, तो that is what we are calling the learning Bayesian network. We first want to learn the Bayesian network. ये जो आपका network है, इसको पहले आपने इसके prior और likelihood की values आपने obtain करनी है, and then once you have those, तो फिर prediction आसान है of the hidden variable. बाद में निकल था उसका कंप्लीट हो रहा था, उसको भी तो हमें किसी और तरीके से ही कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस करके आप कहा था वो तो आसान है. मतलब कि अगर देखें आपके पास लाइक्लीहुड में इफ यू बेसिकली आपने 1 गिवन L जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज द लाइक्लीहुड, तो इट मींस के वी वांट टू नो के व्हाट इज दिस, ये इसका पार्ट उसी का पर y,
तो ये दोनों हमने कंप्यूट करने हैं बेस्ड ऑन द डेटा। तो नॉट और W1 एंड नॉट W1 दोनों कंप्यूट करने हैं, या दोनों वी हैव टू लर्न देम फ्रॉम द डेटा। तो ये भी हमने, दिस इज आल्सो, अब आगे हमने एग्जांपल में देखा था कि ये भी हमने फ्रॉम द डेटा वी विल लर्न दीज वैल्यूज एज वेल। ठीक है, सारी वैल्यूज आपने लर्न करनी है। तो लाइकली जब व्हेन आई राइट दिस थिंग, इट मीन्स ऑल दोज वैल्यूज। वो नॉट वैल्यू वैल्यूज के अंदर बाय डिफॉल्ट मेरा मतलब वही है कि दिस बेसिकली मीन्स कि आपने ये भी आपको पता होना चाहिए, इट मीन्स कि आपको ये भी पता होना चाहिए, एंड आपको ये भी पता हो तभी आप पोस्टीरियर कंप्यूट कर सकेंगे। ठीक है, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तो तब आप पोस्टीरियर पे आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। So we were last time, then we started looking at the this topic, learning Bayesian network. Okay, we want to find the likelihood and prior probabilities from data, और जब वो आ जाएगा आपके पास, फिर पोस्टीरियर का तो फॉर्मूला पता है, उसमें सिर्फ आपने वैल्यूज डालनी है और आपकी पास प्रेडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, वी स्टार्टेड दैट बाय लुकिंग एट वन वेरिएबल। उसमें सिंपल जो हमने एल्गोरिथम यूज़ किया था, दैट वाज के नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स डिवाइडेड न्यूमरेटर में जो जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें उसके इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आपका डाटा सेट है ऑफ मूवीज़ रेटिंग और आपने 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि किसी मूवी की रेटिंग 4 होगी, तो आप काउंट करेंगे 4 के इवेंट्स विच आर 5, टोटल इवेंट्स 10 है, तो आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी 0.5। इस प्रोसीजर को कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ठीक है, जब भी आप ये आगे भी हम नेक्स्ट में भी जो हम कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर लर्निंग द बेयन नेटवर्क यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन अप्रोच। ठीक है, और फिर हमने नेक्स्ट देखा था इन केस ऑफ 2 वेरिएबल्स के, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तब आपने क्या करना है। ठीक है, तो करनी है कि अगर आपने प्रायर, दिस इज दी प्रायर कि आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, आपने लाइक्लीहुड की प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अब जैसे आप पूछ रहे थे ना कि नॉट की आपने फाइंड करनी है, तो बेसिकली आपने हर एक रेटिंग, हर एक की वैल्यू फाइंड की हुई है। नॉट तो था जब आपके पास बाइनरी है, बाइनरी अगर नहीं है 6 उसकी वैल्यूज हो सकती है, तो हर एक के लिए आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। सिमिलरली आपने देखिए सी के लिए भी की है, डी के लिए भी की है, जो बाकी नहीं मिसिंग है दे आर बेसिकली 0, तो यहाँ लिखे नहीं हुए। ठीक है, तो आपने ड्यूरिंग लर्निंग फेज यू हैव टू फाइंड ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज, लाइक्लीहुड की जो है और प्रायर की, फॉर डी, फॉर सी, बेसिकली फॉर 0, फॉर 1, जितने भी आपके पास आउटकम पॉसिबल है सब के लिए प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द डेटा वो कंप्यूट कर ली है। नाउ यू कैन इजीली कंप्यूट द पोस्टीरियर। अभी आपको कोई भी सा क्वेश्चन आता है कि फाइंड मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी गिवन R is 1, for example, कि find the probability कि the movie is drama given that the rating is 1, तो ये वैल्यूज आप यूज़ करके इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपली दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, बेसिकली R is 1, G is D, एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ G is D। ये तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 0 आ गया बेसिकली, ये 0 आ गया क्योंकि द डाटा वाज लाइक दैट कि ये 0 आ गया। बट लेटर ऑन वी विल सी कि ये 0 इसलिए आ रहा है कि यू मे बी ओवरफिटिंग टू द डाटा सेट। वो कम डाटा सेट था तो आपने ओवरफिट कर दिया, तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट राइट नाउ इट इज़ कमिंग एज 0 जो उसकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड केस कि आपके पास एक की बजाय 2 हैं एविडेंसेस। ठीक है, 2 रिव्यूज़ हैं, 2 पर्सन्स के रिव्यूज़ हैं, तो आपके पास डाटा भी फिर उसी तरीके से होगा। ये एक बंदा था जिसने वो एक मूवी देखी ड्रामा, उसको उसने रेट किया, एक पर्सन ने रेट किया 4, दूसरे ने उसको रेट किया 5। ये एक और मूवी थी जिसको एक पर्सन ने रेट किया, ड्रामा थी 4, दूसरे ने भी 4 किया, 5 3 किया, C 1 2 किया, C 5 4 किया। ठीक है, अभी इसकी भी लर्निंग का जो तरीका है वो एग्जैक्टली वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी पहले अगर फाइंड करें तो इफ जी इज डी और सी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आपने काउंट करने हैं पहले जी डी कितने हैं, तो दे आर 3, तो अगेन वेरी इजी, 3/2/5 एंड 3/5। ठीक है, नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट वेरिएबल विच इज R1 गिवन जी।
फिलहाल तो हम इनको अलग काउंट कर रहे हैं, 2 रेटिंग है, तो दिस इज एक मूवी की 2 रेटिंग है, हम उनको ये यानी कि इस मूवी की 2 रेटिंग आ रही है, तो उस लिहाज से हमने किया हुआ है, ठीक है, R1 और R2। इसी तरह अगर 3 रेटिंग होगी तो आपके पास, आप इस एक ही मूवी की 3 रेटिंग है, तो आपने इस तरह कर दिया कि एक बंदे ने रेट किया, दूसरे ने रेट किया, तीसरे ने रेट किया, तो इस तरीके से हम कंप्यूट कर लेंगे। ये तो बड़ा वो डिस्टर्बेंस होगी इस तरह। ये पीछे से इसको खिड़की को बंद करें, कुछ फर्क पड़ता है इसमें? हाँ अच्छा ठीक है। वो उनको आप ना बोले, ये बाहर जो है ना, ये जो बाहर कोई होगा उनको कह दे कि ये डिस्टर्बेंस आ रही है, तो माइक का वॉल्यूम कम कर दे। Okay, now we want to find the probability of R1. Similarly, C के लिए भी आपने 1 2 3 4 5. Okay, so what is the probability that R1 is 1 given that G is D? तो पहले तो आप देखेंगे सब सिर्फ D के आपने निकालने हैं, ये वाले। इसमें R1 नहीं, उनको आप कहेंगे, उन्होंने कहा वॉल्यूम अपना कम कर दें, कहा बस ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, नाउ यू आर गोइंग टू ओनली लुक एट दी R1। पहला जो रिव्यू है वो R1 है, तो R1 1 इन तीनों में नहीं है, तो इसलिए आपकी यहाँ आ गई प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। ये भी 0 आ गया, 0 4 जो है वो 2 रिव्यूज हैं, 2/3 1/3। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, 0 0 नहीं, आपके पास 5 4 और 3 है सिर्फ ना। ओके, ठीक है, सी की हम कर रहे हैं, तो ये 1 और हमने 5 देखना है, ठीक है। तो 1/2 एंड 1/2, बाकी सब 0 आ गए, ठीक है। इसी तरह नाउ वी वांट टू कंप्यूट फॉर R1G R2G, उसकी भी वैल्यू इस तरह आ जाएंगे आसानी से। लेकिन यहाँ आपने राइटली वो आइडेंटिफाई किया कि हमने द वे वी हैव ड्रॉन दिस नेटवर्क के एक मूवी को अगर 2 बंदों ने रिव्यू किया है, तो उसके लिए हमने ये किया है कि वो अलग एक उसका एक बनाया है उसको वेरिएबल, और उसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि ऑल्दो यहाँ एक ही मूवी के 2 रिव्यूज़ हैं इस मूवी के, वी हैव कंसिडर्ड एज 1 रिव्यू फॉर ईच पर्सन, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम आ गई है कि एक तो हमारे पास डाटा सेट थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह हम ये भी कर सकते थे, इसकी जगह 2 रिव्यू ले लेते कि D4 इज़ 1 रिव्यू एंड D5 इज़ 1 रिव्यू, ठीक है। इसी रिव्यू को हम 2 रिव्यू बना सकते थे, और जो पिछला आपका केस था या इसी केस में आप उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका डाटा सेट बढ़ जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि हर एक बंदे को आप देखेंगे जिसने रिव्यू किया उसको एक सेपरेट रिव्यू लें। इसका नुकसान ये भी है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई मूवी को हर एक रिव्यू करे, तो लेकिन कोई ना कोई किसी एक मूवी को देख लेगा, तो यू विल गेट सम रिव्यू फ्रॉम दैट मूवी। So that concept is called parameter sharing. Instead of doing the going through this procedure जो कि हमने इस स्लाइड में किया है, what we do is to what we do is कि instead of considering them as one review, we will make it 2 reviews कि आपके पास ये 2 रिव्यू यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, इस तरीके से टोटल आपके पास 10 रिव्यूज आ गए, ठीक है। अभी आपने कंप्यूट करना है इन R given G, क्योंकि नाउ वी आर नॉट मेकिंग अ डिस्टिंक्शन कि वो R1 है या R2 है, तो इस केस में अभी एक तो डाटा सेट भी बढ़ गया आपके पास, नाउ द वैल्यूज विल बी 10 आ गई हैं, और वो बेहतर भी आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस केस में फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कंप्यूट D1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, देखिए 1 का आप देख रहे हैं
चलो कोई नहीं, वो तो 0 आ गया। 2 का भी 0 है, 3 का अगर 1 है तो 1/6, 4 में आपके पास 1 2 3 है तो 1/2 आ जाएगा। 5 1 एंड 2 तो 2/6। इसी तरह सी का भी आप कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में वही आपके पास ये जो है यूजिंग द पैरामीटर शेयरिंग, वो चीज़ आपके पास आ गई है। ठीक है, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट के इंस्टेड ऑफ we will assume के the local conditional distributions of different variables use the same parameters, which means that we are going to share the parameters amongst all these ratings. So R1 given G is equal to R2 given G is equal to P RG। ये जो आपने यहाँ कंप्यूट किया है, तो वी आर गोइंग टू अज्यूम कि सब इसके इक्वल हैं, ताकि हम ये सारा पैरामीटर शेयर कर लें, या डाटा सेट भी शेयर कर लें। ठीक है, ओके देन दिस जो सारा प्रोसीजर हम कर रहे थे टू कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी या लर्निंग द बेयन नेटवर्क, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, और उसके आपने देख लिया है। आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इन मच डिटेल। बेसिकली वी आर यूजिंग द मैक्सिमम लाइक्लीहुड पैरामीटर एस्टिमेशन। ये जो आप फाइंड कर रहे हैं ना जो प्रोबेबिलिटी, उस प्रोसीजर को नाम हम कहते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। The last thing of naive Bayes that remains is overfitting। जैसे हमने देखा कि अगर डाटा सेट कम है या फॉर whatever reason आपका जो एल्गोरिदम है इट इज़ अडॉप्टिंग टू मच टू दी ट्रेनिंग सेट, और वो जनरलाइजेशन आपके पास नहीं आ रही कि आप what you are observing is कि your error on if your error on the train set is if you are observing such a condition कि आपका जो ट्रेनिंग सेट पे एरर है वो बहुत कम है from the test set, तो then you may be experiencing the overfitting। तो उस केस में हमने डिसीजन ट्री में क्या एक तरीका पढ़ा था कि आपने पहले ही डेप्थ पे स्टॉप कर दिया। ठीक है, नाइव बेस में हम देखेंगे इट इज कॉल्ड लाप्लास स्मूथिंग। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये ओवरफिटिंग कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने यू हैव अ कॉइन विद एन अननोन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, you flip it 100 times, the resulting in 23 heads and 75 tails. So what is the estimate of head? The probability of head is 23/77.77। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका आपने कॉइन को टॉस किया, ये आ गया। But what if you just flip the coin once and get head? Then your estimate is 1, which you know के ऐसा नहीं होगा कि टेल भी आएगा, और मे बी आपका डाटा सेट कम था और आपने सिर्फ ट्रेनिंग सेट के ऊपर सिर्फ आपका जो भी एस्टिमेशन है तो ओनली लिमिटेड टू द ट्रेनिंग सेट, और जनरलाइजेशन उसमें बहुत कम होगी। तो दिस इज बेसिकली ओवरफिटिंग, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू सिम्युलेट सम एक्सपेरिमेंट। कि आप अगर लेट्स से एक ही आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास आ गया हेड। ठीक है, जस्ट गिविंग एग्जांपल, ये आपने एक्सपेरिमेंट जो रियल एक्सपेरिमेंट था वो आपने किया। Now what you are going to do is to simulate some more experiments। Simulate से मतलब ये है कि we are just going to say कि जितनी आपके पास possible outcomes थी, head और tail हो सकते हैं, तो we are artificially going to add those as well। ठीक है, एक आपने head ऐड कर दिया और एक tail ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो आपका था रियल एक्सपेरिमेंट जिसमें आपके पास सिर्फ एक हेड आया। इस तरफ आपने ऐड क्या किया है, आर्टिफिशियली आपने एडेड सम एग्जांपल्स, लेकिन इसमें आपने इक्वल हेड और टेल की इक्वल करनी है ताकि आप बायस किसी तरफ ना करें। तो आपने एक हेड और एक टेल ऐड कर दिया। तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? इट इज 2/3 एंड व्हाट अबाउट टेल? 1/3। ठीक है, तो लेट्स ऐड 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। तो उस केस में आपके पास हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 3/5 एंड 2/5। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड लाप्लास स्मूथिंग। जब आपने एक का ऐड किया यानी एक हेड और एक टेल, तो यू
your parameter जो lambda है जो Laplace smoothing का it is 1, so you have just added one sample of each head and tail. When lambda was 2, you added 2 samples. So in the extreme case, if you add lambda to be equal to, let's say, infinity, a very large number, 1000, so what will be the probability of head? 1 by 2, and a tail 1 by 2. So what do you see from this? लेकिन आपका अगर जो कॉइन है वो भी फेयर ना हो, 0.5 ना हो, तो उस केस में फिर आपने तो ये ऐड करने की वजह से एक गलत काम किया है कि उसकी वजह से आपका भी फेयर कॉइन बन गया, या आपके पास 0.5 प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि आपको नहीं एग्जैक्टली पता कि वो है कि नहीं है. Basically, this lambda is something जो कि as a designer of the algorithm you set for some data set या जो भी आपके पास प्रॉब्लम है. अगर आप बहुत ही एक बड़ा नंबर सेट कर देते हैं, then you can see कि आपने ओवर स्मूथिंग कर दी है, तो you are then अंडर फिटिंग. ठीक है, you can अगर बहुत बढ़ा देंगे then you अंडर फिट, कि आपने इतना जनरलाइज कर दिया कि वो बस 0.5 देना शुरू हो गया, तो मे बी 0.5 गलत हो, कि आपने बिल्कुल ही ट्रेनिंग सेट को छोड़ के जो आर्टिफिशियल डाटा था उसी के ऊपर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो रियल डाटा का जो इफेक्ट था वो बहुत कम हो गया, और आर्टिफिशियल डाटा का इफेक्ट है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया. ठीक है, स्मूथ से क्या मतलब है, देखिए व्हाई वी कॉल इट स्मूथिंग. देखिए इसको इसी तरह एग्जांपल, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल. बाइनरी के अलावा डाइस की एग्जांपल ले लेते हैं. डाइस में आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6 है. तो उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से यू गेट 1 and 2. एक बार आपने रोल किया 1 आया, सेकेंड टाइम रोल किया 2 आया. अभी आप इन पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0.5 1 की आएगी, 0.5 2 की आएगी, और 3 4 5 6 की 0 आएगी. तो लेट्स डू लैप्लास स्मूथिंग. तो आपने अगर लैप्लास स्मूथिंग लैम्डा इज 1, तो आप क्या ऐड करेंगे? तो जितनी पॉसिबल आउटकम्स है उसकी एक एक दफ़ा आप ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 and 6. Now when you compute the probabilities, तो आपकी जो है probabilities जो है कुछ मतलब कि 1.5 अगर 1 2 की 0.5 थी वो कम हो जाएगी, और 3 4 5 6 की 0 थी वो बढ़ जाएगी. ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो ड्रॉ दैट. लेट्स से कि ये आपके पास आउटकम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, राइट? So, if you don't consider Laplace smoothing or lambda is 0, in that case, given this data set, this is, let's say, your probability, which is 1 here and 0.5 here. So in that case, this is the probability you get: 0.5 for 1, 0.5 for 2, and then you get, or maybe let's add another one. यहाँ के आपके पास 5 भी है, तो फिर 0.5 तो नहीं बनेगा, 0.3 हो जाएगा राउंड, 0.33. लेट्स से कि ये आपका 0.33 ही है, तो 2 के बाद 0 हो गया, या लेट्स राइट है कि 0 हो गया, और फिर आपके पास 5 पे 1 हो गया, एंड देन इट इज 0. ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. इफ यू ऐड लैम्डा 1, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कि ये जो वैल्यूज, ये पार्ट है वो कुछ नीचे हो जाएगा, जो नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा. ठीक है, और इन द एक्सट्रीम केस व्हेन लैम्डा इज 1000, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो आपके पास समथिंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. दिस इज द मोस्ट स्मूथ सोल्यूशन या मोस्ट स्मूथ वैल्यू दैट यू कैन गेट. लाइन आ गई है, तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट लाप्लास स्मूथिंग. वी आर स्मूथिंग आवर प्रोबेबिलिटीज, लेकिन हम अंडरफिट भी नहीं करना चाहते हैं. अंडरफिट का मतलब ये है कि बस अभी ये दिस इज बेसिकली अंडरफिट. लेकिन ये जो इस तरह का बहुत नॉन स्मूथ और इरेगुलर शेप है, ये अगर आपके पास आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ ओवरफिटिंग. तो यू वांट टू स्मूथ, बट डिपेंडिंग ऑन द लैम्डा आपने चूज करना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, मे बी 1 इज राइट, 2 इज राइट, 3 इज राइट, तो वो उस लिहाज से आपने चूज करना है. ठीक है, ऑल्सो लैम्डा इज ऑल्सो अनदर पैरामीटर. इसको चूज करने के लिए भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो किस तरीके से चूज करना है. अगर आपने लैम्डा की वैल्यू चूज़ कर रहे हैं यूजिंग योर टेस्ट सेट, कि आपने लेट से लैम्डा 1 चूज़ किया और देखा टेस्ट सेट का एरर थोड़ा सा कम हो गया, लैम्डा 2 चूज़ किया और देखा
टेस्ट सेट का एरर और कम हो गया। 3 चूज किया तो आपने देखा कि बस वो उधर ही रह रहा है लेकिन ट्रेनिंग एरर बढ़ रहा है, देन यू वुड से कि लैम्डा 2 इज द राइट थिंग। लेकिन वी विल लेटर ऑन सी के अगर आप इस तरह करेंगे तो यू मे ऑल्सो ओवरफिट योर लैम्डा पैरामीटर, कि आपने टेस्ट सेट को ही यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल एरर भी नहीं आ रहा कितना होगा, क्योंकि यू आर यूजिंग द सेम डेटा सेट टू कंप्यूट अ पैरामीटर। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, वी विल सेट असाइड अनदर bunch of examples for testing the lambda parameter performance। ठीक है, तो लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल just keep it like this कि lambda parameter और Laplace smoothing is a parameter lambda depending on the value you're going to smooth out your solution, कि आप overfit ना करें। ठीक है, बस। और बाकी इसमें जो है तो कुछ रहता नहीं है, ये बात खत्म। ये यहाँ आपका अगर फॉर एग्जांपल लेट्स डू दिस एग्जांपल कि ये आपके पास ट्रेनिंग सेट है एंड यू आर डूइंग Laplace smoothing of 1, तो लेट्स कंप्यूट दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रायर। तो इफ लैम्डा इज 0, ठीक है, लैम्डा इज 0, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी? इफ लैम्डा इज 1, तो आपने हर एक का एक आपने डाल दिया एक एग्जांपल, तो आपके पास एक क्योंकि बाइनरी वेरिएबल है तो एक डी और एक सी और ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू द likelihood। इस तरह है कि आपने क्योंकि लैम्डा 1 है तो यू हैव एडेड 1 एग्जांपल ऑफ डी एंड 1 एग्जांपल ऑफ सी, तो अभी आपके पास टोटल 5 एग्जांपल हो गई हैं। ठीक है, तो और उसमें से 1 2 3 आपकी डी है और 2 आपकी सी है। ठीक है, okay, now if r is 1 2 3 4 5, if lambda is 0, the probability that r is 1 given g is d is 0। लेकिन अगर आप हम अभी ये करें कि Laplace smoothing ऑफ लैम्डा 1 इसमें ऐड करें तो उस केस में क्या हो जाएगा? तो बेसिकली वी आर गोइंग टू ऐड 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ रेटिंग r और इसमें d होगा, तो बेसिकली हम ये ऐड करेंगे d1 d2 d3 d4 d5। ठीक है, और इसकी मदद से फिर हम आगे कंप्यूट करेंगे और ये आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो पहले 0 था 1/7 आ गया, तो सिमिलरली 2 का भी 0 था 1/7 हो जाएगा, 3 भी 1/7 हो जाएगा, और 4 जो है 1/2 था, ये 2/7 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। और so that finishes the naive Bayes। तो naive Bayes, let me recap, based on Bayesian theorem we have one assumption of conditional independence, और उसी वजह से इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं naive Bayes algorithm, क्योंकि that assumption is very naive। और the structure in all naive Bayes problem is of this type। अगर उसका Bayes network हम draw करें कि we have a hidden variable जिसकी आपने probability find करनी है, और it based on some evidence जो से उस hidden variable से related जो evidence है उनकी base पे आपने इसकी probability find करनी है। तो we are going to call the hidden variable, let me say y, condition on all the evidences, let me call it E to EL।
तो आपने फाइंड ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कंडीशन ऑन E1 to EL एंड दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. इसको दिस इज इक्वल टू द प्रायर एंड द लाइक्लीहुड इसकी एंड डिवाइडेड बाय देन सम डिनोमिनेटर. So prior है basically E1 divided by Y, E2 divided by Y and so on. Or during the learning phase, you are going to use the data set to compute all these likelihoods and the prior. Once you have that, then you are going to compute the posterior. If you encounter overfitting, then you are going to apply Laplace smoothing. Secondly, we also look at parameter sharing. In some problems, you will see that we can share the parameters. कि आप जो data set है उसको इस तरीके से use करें कि you share these parameters, so your likelihood will be basically same. ठीक है, तो ताकि हमें एक दफ़ा ही वो सारे जितने भी चिल्ड्रन उन सब का जो पैरामीटर्स हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लाइक्लीहुड वो एक ही हैं, उसी डाटा सेट से आप यूज़ करेंगे. This is called parameter sharing. And the way we computed the likelihood and the prior was through maximum likelihood estimation technique. ठीक है, और बाकी तो इसमें और कुछ नहीं. Any question? उसमें भी वही टेक्स्ट बतानी है कि अगर आप एरर प्लॉट करेंगे ना, जैसे अभी हमने देखा कि इस केस में भी अब लाप्लास स्मूथिंग, लेट्स से कि यहाँ आपके पास वी हैव लेमडा. ठीक है, लेमडा बिल्कुल जीरो हो, लेट्स से कि लेमडा आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ आपका एरर है. उस केस में डेप्थ थी, क्योंकि वो डिसीजन ट्री है, उसमें आपका जो डेप्थ की बेस पे आप देख रहे थे, तो यहाँ इसको डेप्थ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ नोड्स. एनीवे कि जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज करेंगे या लेमडा को नहीं, ऑपोजिट है, लेमडा को इंक्रीज करने से क्या होगा, स्मूथ होगा. लेमडा को डिक्रीज करने से ओवरफिटिंग होगी. यहाँ लेकिन डेप्थ को इंक्रीज करने से क्या होगा, ओवरफिटिंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं. कम करने से जो अंडर फिटिंग तरफ जाएंगे. तो दोनों का रिलेशन डिफरेंट है. लेट मी डू दैट फॉर लेमडा हियर नाउ. तो लेमडा को जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपका ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा, कम होगा. लेमडा 0 होगा तो आपका ट्रेनिंग एरर नहीं, क्योंकि लेमडा 0 है, मीन कि यू आर नॉट डूइंग एनी स्मूथिंग. तो जो भी आपका ट्रेनिंग सेट है उसके ऊपर तो आपका जितना मिनिमम पॉसिबल एरर है वो आ रहा होगा, लेकिन आपको टेस्ट एरर भी ज़्यादा आ रहा होगा. व्हाट यू वांट इज़ टू हैव मिक्स के आपका ट्रेनिंग एरर पे भी कम हो, जनरलाइजेशन एरर भी कम हो, टेस्ट एरर पे भी कम आ रहा हो. इसलिए आपने लेमडा को इंक्रीज़ करना है. लेकिन आफ्टर सम टाइम तो लेमडा को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि ट्रेनिंग एरर भी बढ़ेगा और टेस्ट एरर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. यू मे गेट समथिंग लाइक दिस कि ये आपका ट्रेनिंग एरर है, ये मैं आपको ट्रेनिंग एरर ड्रॉ कर रहा हूँ. इट विल इंक्रीज लाइक दिस कि शुरू में जितना कम पॉसिबल था उतना है, उसके बाद आपने इंक्रीज़ किया तो ट्रेनिंग एरर जो है वो बढ़ेगा. ठीक है, और टेस्टिंग एरर और जब आपने यूज़ किया है ड्रॉ करता हूँ. और अगर आपका टेस्ट एरर का क्या होगा कि टेस्ट एरर लेमडा 0 पे ज़्यादा होगा, क्योंकि मे बी ओवर फिटिंग, तो मे बी यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो वो कम होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो भी बढ़ेगा यूँ करके. तो आपने चूज़ करना है कि ये जगह जहाँ लेमडा 3 अगर फॉर एग्जाम्पल इस केस में बन रहा है. तो अगेन दीज आर आइडियल केसेस. एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है वो तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, एग्जैक्टली ग्राफ किस तरह का होगा. बट जनरली यू आर गोइंग टू सी अ सिचुएशन लाइक दिस कि आपका ट्रेनिंग एरर बढ़ेगा, टेस्ट एरर कम होगा और फिर बढ़ेगा. और लेमडा को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपने ऐसा लेमडा चूज़ करना है जो कि ऐसी जो जहाँ ट्रेनिंग एरर भी कम है और टेस्ट एरर भी कम है. फिर भी आपको इतना एंड यूँ अगर रह रहा है, फिर भी आपको क्या ज़रूरत है कि लेमडा बढ़ाने की. तो उसमें भी देखें, अगर आपने लेट्स से आपका उस केस में डेप्थ के लिहाज से ये बन रहा है कि ये ट्रेनिंग एरर है और टेस्ट एरर आपका ये इस तरह का है कि और यूँ रह रहा है,
तो इस केस में भी देखें यू जस्ट स्टॉप हियर, क्योंकि जितना बढ़ाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा रहे हैं एल्गोरिथम की। यू डोंट, एक ही एरर आ रहा है तो जस्ट गो विद द मिनिमम पॉसिबल डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी आपके मॉडल की कम है। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। फिर भी ये भी नीचे जा रहा हूँ, तो उस केस में फिर ये कि आप फुल डेप्थ पे जाएं और जितनी पॉसिबल है, क्योंकि दोनों उसमें आपके डेप्थ भी, टेस्ट भी अगर कम आ रहा है, ट्रेनिंग एरर भी कम आ रहा है। तो उसमें यही है कि प्रॉब्ली द प्रॉब्लम इज़ नॉट, इतना इजी है कि आपने ट्रेनिंग एरर पे जो लर्निंग की है वो इट इज़ गुड फॉर टेस्ट एरर ऑल्सो, कि जो जितना आपका टेस्ट, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका टेस्ट एरर बढ़े आफ्टर ओवरफिटिंग नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, तो ठीक है, उस केस में तो आपने एंड तक जाना है। तो दिस लैब विल बी अबाउट दी नाइव बेस जो फ्राइडे को होगी, उसमें भी वही तकरीबन उसी तरह की होगी। सेकेंडली वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो थ्रू अ लेक्चर ऑन केस नियरेस्ट नेबर KNN। ठीक है, उसकी स्लाइड और ऑडियो क्लिप होगी, उसको आपने, छोटा सा लेक्चर है वो सुन के। तो लैब विल बी फ्रॉम नाइव बेस एंड KNN। ठीक है, KNN इज अनदर क्लासीफायर। द बेसिक आइडिया इज सिंपली, हमारे पास 5 मिनट हैं, जस्ट सिर्फ ब्रीफली मैं KNN का जो आइडिया वो आपको दे दूँ कि KNN इज सिंपली लाइक दिस, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये डाटा सेट है, ठीक है, 2D की बात करते हैं हम 2D में आपके पास एक डाटा सेट है जो कि एग्जांपल यू हैव वन क्लास, उसकी ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं जो पॉइंट्स कह रहा हूँ मतलब ये है कि ये अगर 1 है, ये 5 है, तो 5 1 6 1, ये सारी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर वन क्लास। ये को क्लास है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी को क्लास है जो कि वो है डायमंड है, लेट्स से। ठीक है, वो यहाँ ड्रॉ हुई है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है। अब ये आपके पास ट्रेनिंग सेट है, और एक और आपके पास पॉइंट टेस्ट सेट में आता है, वो इधर आता है। यू डोंट नो कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो बाकी जो ड्रॉ की गई है वो आपके टेस्ट सेट थे। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, the easiest thing is KNN, you are going to measure distance to all the training data। आप कहेंगे इसका डिस्टेंस किसके करीब है। ठीक है, और जो उसके करीब तरीन है उसको आप कहेंगे ये इस क्लास से बिलोंग करता है। तो केस में क्या है कि हमने कहा KNN, के क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। अगर आप 1 करेंगे तो जो गोइंग टू मेजर कि जो पहला तरीन करीब है, करीब तरीन जो पहला क्लास है उसके साथ आप कहेंगे अच्छा इससे मिलता है तो ठीक है। 2 किया तो यू आर गोइंग टू लुक एट 2 नियरेस्ट नेबर्स, और वो देखेंगे उनकी क्लास किससे बिलोंग करती है। या 3 करेंगे तो 3 को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी अ सिचुएशन लाइक दिस, कि आपके पास एक ये है और उसके बाद एक आपके पास जो है वो दूसरी क्लास ये है। ठीक है, और यहाँ आ गया। अब ये आपके देखें यहाँ जो है, लेट मी ड्रॉ इट हियर, यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, इसको अगर आप 1 नियरेस्ट नेबर देखेंगे तो कहेंगे कि दिस इज शॉर्टर डिस्टेंस तो इट बिलोंग्स टू दिस क्लास। 2 नियरेस्ट देखेंगे तो एक तो नियरेस्ट ये है, या 3 नियरेस्ट देखेंगे, बाकी एक नियरेस्ट ये है और एक नियरेस्ट ये है, 3 नियरेस्ट ये बन गए। इन तीनों में से ज़्यादा किसकी करीब है, सर्कल के। तो यू आर गोइंग टू से ओके दिस क्लास बिलोंग्स टू दिस बेस्ड ऑन 3 नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो के का मतलब ये है कि यू आर नाउ लुकिंग एट के नियरेस्ट नेबर्स, और उनमें से जो ज़्यादा आपकी टेस्ट डाटा के करीब तरीन है उनसे के करीब उसको आप साइन कर देंगे इस क्लास को। ठीक है, नंबर पे जो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 ज़्यादा करीब हैं तो उसने उसको असाइन कर दिया। अगर 1 करता तो फिर इट इज़ ओनली गोइंग टू लुक एट दिस 1, क्योंकि इसी 1 में सिर्फ एक ही आ रहा है। ठीक है, 2 करता तो प्रॉबेबली उसमें फिर आपको पता आ जाता है कि 2 हैं, देन यू हैव टू गो विद सम अदर असम्पशंस कि अब क्या करना चाहिए। 1 का इक्वल डिस्टेंस को तब भी आपके पास फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम जिसके फिर मतलब डाटा सेट इज नॉट इनफ टू देन डिसाइड। उसमें फिर आपको मे बी सम अदर असम्पशंस के उसमें आई डोंट नो कि फिर आप मतलब कि डाटा सेट इज नॉट नाउ अलोन इज नॉट गोइंग टू टेल यू दैट, फिर आपको कोई असम्पशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस दे दें, हाँ ठीक है,
ठीक है, फिर आप कर लें कि अगर दोनों इक्वल है तो कहीं 0.5% बिलोंग टू दिस एंड 0.5% बिलोंग टू दैट। ठीक है, तो हाँ, यू कैन कम अप विद दीज सॉल्यूशंस। और इन दी एंड लेकिन आपको क्लास ही बतानी है, फिर कोई और अजम्पशन आप देख लें, या फिर के को 2 कर दें। ठीक है, कि 1 पे आपका सही नहीं आ रहा तो 2 बढ़ा दें, जैसे आप लेमडा बढ़ाया तो के को बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो वो भी लेमडा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पैरामीटर विच इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन ओवरफिटिंग ऑल्सो। उसको बढ़ाने कम करने से इफेक्ट आपका ही ओवरफिटिंग वाला ही उस पर भी होगा, अंडर फिटिंग ओवरफिटिंग का। ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक है फिर, ओके। ऑनलाइन क्लास, एनी क्वेश्चन? ओके, एंड प्लीज एक शीट पे मुझे जो है ना अटेंडेंस आप अपनी कर दें, नाम लिख दें और रजिस्ट्रेशन नंबर।